سچی کہانی کا بہترین سبق انسان کی زندگی میں کہانیاں صرف دل بہلانے کا ذریعہ نہیں ہوتی بلکہ یہ سوچنے سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کا ایک خوبصورت ذریعہ بھی ہوتی ہے۔ اچھی اور سچی کہانی انسان کے دل پر ایسا اثر چھوڑتی ہے جو صرف چند لمحوں کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے رہنمائی بن جاتی ہے۔ سچی کہانی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں کوئی جھوٹا رنگ بناوٹی جذبات یا مصنوعی تعریف نہیں ہوتی بلکہ حقیقت کی روشنی ہوتی۔ حقیقت انسان کو وہ سبق دیتی ہے جو اکثر لمبی نصیحتیں بھی نہیں دے سکتی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سچی کہانی انسان کے دل میں اتر کر اس کی سوچ بدل دیتی ہے۔ سچائی ایک ایسا عظیم وصف ہے جو انسان کی شخصیت کو نکھارتا ہے، اس کے کردار کو مضبوط کرتا ہے، اسے اعتماد، عزت اور کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ جھوٹ وقتی فائدہ تو دے سکتا ہے لیکن اس کا انجام ہمیشہ نقصان، شرمندگی اور ذلت کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس کے برعکس سچائی کبھی کبھی مشکل ضرور لگتی ہے مگر اس کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سچی کہانی ہمیں زندگی کے اہم ترین سبق سکھاتی ہے، خصوصاً یہ کہ انسان کو ہر حال میں سچا، ایماندار اور مضبوط کردار کا مالک ہونا چاہیے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب مگر بہت ایماندار لڑکا رہتا تھا۔ اس کا نام حسن تھا۔ حسن کے والد ایک مزدور تھے اور ماں گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی۔ گھر میں زیادہ آسائشیں نہ تھیں لیکن ایک چیز بہت مضبوط تھی، سچائی۔ حسن کے والد ہمیشہ اسے نصیحت کرتے تھے کہ بیٹا، دولت نہ ہو تو صبر کر لینا مگر زبان پر جھوٹ نہ آنے دینا۔ جھوٹ انسان کو عارضی فائدہ دے کر ہمیشہ کے لیے نقصان پہنچاتا ہے۔ حسن یہ بات دل میں بسا لیتا تھا، وہ بچپن سے ہی سچ بولنے کی عادت رکھتا تھا، چاہے اس کی وجہ سے اسے ڈانٹ ہی کیوں نہ پڑے۔ ایک دن گاؤں کے اسکول میں امتحان تھا۔ حسن بہت محنتی طالب علم تھا مگر ریاضی کے ایک سوال میں اسے مشکل پیش آئی۔ اس کے برابر بیٹھے ایک لڑکے نے چپکے سے اپنا جواب اس کی کاپی میں لکھنے کا اشارہ کیا۔ حسن جانتا تھا کہ اگر وہ نقل کرے گا تو شاید اچھے نمبر لے لے، لیکن دل نے گواہی دی کہ یہ غلط ہے۔ اس نے استاد کو صاف صاف بتا دیا کہ وہ سوال اس سے نہیں ہو سکا۔ استاد نے اس کی ایمانداری کو سراہا اگرچہ اسے اس سوال کے نمبر نہ ملے۔ کچھ دن بعد جب نتائج آئے تو حسن کے نمبر اتنے زیادہ نہیں تھے مگر استاد نے پوری کلاس کے سامنے کہا کہ حسن نے سچ بولا اور سچ بولنے والا طالب علم جھوٹ بولنے والے نمبر لینے والے سے زیادہ قابل احترام ہوتا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب حسن نے محسوس کیا کہ سچائی انسان کی عزت بڑھاتی ہے، چاہے فوری فائدہ نہ بھی دے۔ وقت گزرتا گیا، حسن بڑا ہو گیا۔ اس نے گاؤں کے بازار میں ایک چھوٹی سی دکان کھول دی۔ دکان پر روزانہ بہت سے لوگ آتے۔ حسن کی خاص بات یہ تھی کہ وہ کبھی ناپ تول میں کمی نہیں کرتا تھا۔ اگر گاہک کو غلطی سے زیادہ چیز دے دی تو واپس نہیں مانگتا تھا اور اگر چیز میں معمولی خرابی بھی ہوتی تو صاف بتا دیتا تھا۔ شروع میں کچھ لوگوں نے اسے کہا کہ بازار میں سب لوگ ایسا نہیں کرتے، تم بھی ہوشیار بنو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ مگر حسن کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ سچائی سے ہٹنا اپنی عزت بیچنے کے برابر ہے۔ اس نے کبھی اپنی زبان، اپنے وزن، اپنے وعدے اور اپنے حساب میں جھوٹ شامل نہ ہونے دیا۔ ایک دن بھی امیر تاجر گاؤں میں آیا، اس نے حسن کی دکان سے سامان خریدا۔ حسن نے پورا حساب صاف بتایا اور بالکل درست قیمت لی۔ تاجر نے غور کیا کہ یہ نوجوان عام دکانداروں جیسا نہیں ہے، اس کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ اطمینان ہے، اس کی باتوں میں لالچ نہیں بلکہ صفائی ہے۔ چند روز بعد اسی تاجر نے حسن کو اپنے شہر کے بڑے کاروبار میں شریک ہونے کی پیشکش کی۔ اس نے کہا، مجھے مال کی کمی نہیں، مجھے ایماندار ساتھی کی ضرورت ہے۔ دولت تو بہتوں کے پاس ہوتی ہے مگر سچائی کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ حسن کی ایمانداری اس کی قسمت بن گئی۔ اگر وہ شروع سے جھوٹ اور دھوکے کا راستہ اختیار کرتا تو شاید کبھی یہ موقع نہ ملتا۔ یہاں سے حسن کی زندگی کا نیا باب شروع ہوا، لیکن اس کی اصل کامیابی کاروبار میں نہیں بلکہ اس کردار میں تھی جس نے اسے اس مقام تک پہنچایا تھا۔ اس نے شہر میں بھی اپنی سچائی کو نہیں چھوڑا۔ وہ نہ رشوت دیتا تھا، نہ دھوکا کرتا تھا، نہ کسی کمزور کا حق مارتا تھا۔ کچھ لوگ اسے سادہ کہتے، کچھ بیوقوف، مگر وقت نے ثابت کیا کہ سادہ بولے جو سچ بولے بلکہ سادہ وہ ہے جو جھوٹ کی چال میں پھنس جائے۔ اس نے کے کاروبار میں برکت بڑھتی گئی، لوگ اس پر اعتماد کرنے لگے۔ دکان اور پھر کاروبار کا نام خوش اخلاقی، دیانت اور سچائی کی علامت بن گیا۔ ایک بار ایک سخت آزمائش بھی آئی، شہر میں اس کے کاروبار کے ایک حصے میں نقصان ہو گیا۔ اگر حسن چاہتا تو جھوٹ بول کر، غلط حساب دکھا کر، کسی اور پر الزام ڈال کر خود کو بچا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ اس نے اپنے شرکن کار ملازمین اور متعلقہ لوگوں کے سامنے پوری سچائی بیان کر داس نے کہا،
नुकसान हुआ है मगर इसे छुपाना नुकसान को दुगना करना है। मैं सच बोलूंगा चाहे कुछ अरसे के लिए मुझे तकलीफ ही क्यों ना उठानी पड़े। इसके इस एतराफ ने सबको हैरान कर दिया। जिन लोगों ने पहले इसे कमजोर समझा था अब वही इसकी इज्जत करने लगे। इसने सिखाया कि सच्चाई सिर्फ ज़बानी दावा नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में भी इस पर कायम रहने का नाम है। सच्ची कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि सच्चाई इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। झूठ बोलने वाला आदमी हर वक्त डरता रहता है, यासी याद नहीं रहता कि इसने क्या कहा था, किससे किया वादा किया था और किसके सामने कौन सी बात छपाई थी। इसकी जिंदगी एक उलझाव बन जाती है। मगर सच्चा इंसान पुरसुकून होता है। इसके दिल में खौफ कम और इत्मीनान ज्यादा होता है। वो रात को सुकून से सोता है क्योंकि इसे मालूम होता है कि इसने किसी का हक नहीं मारा, किसी को धोखा नहीं दिया और किसी के सामने गलत बात नहीं की। सच्चाई सिर्फ कारोबार और पढ़ाई में ज़रूरी नहीं बल्कि घर, दोस्तों, रिश्तों और हर रिश्ते में लाजमी है। अगर बच्चे अपने वालिदैन से सच बोले, वालिदैन अपने बच्चों से सच बोलें, दोस्त एक दूसरे से सच बोलें और मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ सच्चाई अपनाएं तो घरों में अमन, मोहब्बत और एतमाद पैदा होता है। झूठ रिश्तों में दरार डालता है। अक्सर छोटे झूठ बड़े बड़े झगड़ों का सबब बन जाते हैं। एक झूठी बात कई सच्ची बातों को भी मशकूक बना देती है। इसलिए सच्चाई रिश्तों का हसन है और झूठ उनका जहर। हमारी तारीख में भी सच्चाई की मिसालें बहुत आओ। हमारी दीन में सच बोलने वालों की बहुत इज्जत की गई है। सच बोलने वाले को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है और सच्चाई इंसान को नेकी को जन्नत और इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाती है। अगर एक मुआशरा सच्चाई पर कायम हो जाए तो वहाँ इंसाफ मजबूत होता है, लोगों में एतमाद पैदा होता है और तरक्की के दरवाजे खुलते हैं। इसके बरक्स झूठ, धोखा और फरेब एक कौम को कमजोर कर देते हैं। जब लोग एक दूसरे पर यकीन न करें तो तिजारत भी मुतासिर होती है, तालीम भी कमजोर होती है और मुआशरती निज़ाम भी बखर जाता है। हसन की कहानी हमें यह भी बताती है कि सच्चाई का रास्ता कभी फौरी तौर पर आसान नहीं होता मगर उसका अंजाम हमेशा रोशन होता ही हो सकता है। इब्तिदा में सच बोलने वाला शख्स नुकसान उठाए, तनकीद सहे या इसकी बात को अहमियत ना दी जाए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ सबको इसकी सच्चाई का फायदा नजर आता है। सच्चा एक बीज की तरह है जो पहले जमीन में छप जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता दरख्त बनकर साया और फल देता है। झूठ एक खूबसूरत कागजी फूल की तरह है जो दूर से अच्छा लगता है मगर इसमें खुशबू नहीं होती। आज के जमाने में जब सोशल मीडिया, दिखावा और मसनूई शोहरत का दौर है, सच्चाई की अहमियत और भी बढ़ गई है। लोग तस्वीर में कुछ और होते हैं, हकीकत में कुछ और, अल्फाज में मोहब्बत मगर दिल में नफरत, बातों में खैरखाही मगर अमल में नुकसान। ऐसे माहौल में सच्चाई एक नायाब खजाना बन जाती है। जो इंसान इस खजाने का मालिक बन जाए वो बहुत खुश नसीब होता है। सच्चे इंसान की पहचान ये है कि वो कम बोले मगर दुरुस्त बोले, वदा करे तो निभाए और अगर गलती हो जाए तो इसे कबूल कर ले। कहानी का एक और सबक ये है कि गलती होने पर उसका एतराफ़ कर लेना भी बड़ी हिम्मत की बात है। बहुत से लोग अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं, हालांकि अगर वो सच बोल दें तो शायद मामला आसान हो जाए। सच्चा इंसान अपनी गलती मानने से नहीं घबराता क्योंकि इसे मालूम होता है कि गलती छुपाना गलती से भी बड़ा जुर्म बन सकता है। जो इंसान सच्चाई को अपना लेता है वो दरअसल अपनी इस्लाह का दरवाज़ा खोल लेता है। हसन की जिंदगी के आखिरी बरसों में गांव के लोग अक्सर उसके पास आते और अपने मसाइल बताते। वो उन्हें नसीहत करता कि जिंदगी में सब कुछ एक दिन खत्म हो सकता है मगर अच्छी शोहरत, नेकनामी और सच्चाई हमेशा याद रहती है। माल चला जाए तो फिर भी कमाई जा सकती है मगर एतमाद टूट जाए तो दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसकी बातें लोग गौर से सुनते क्योंकि इसकी जिंदगी खुद इस बात की गवाही थी कि सच्चाई इंसान को इज्जत, बरकत और सुकून देती है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि सच्ची कहानी का बेहतरीन सबक यह है कि इंसान को हर हाल में सच्चाई, दियानत और ईमानदारी इख्तियार करनी चाहिए। सच बोलना कभी कभी मुश्किल जरूर होता है मगर यही मुश्किल इंसान को बड़ा बनाती है। झूठ वक्ती कामयाबी दे सकता है मगर सच हमेशा देर पा कामयाबी देता है। सच वो चिराग है जो अंधेरों में रास्ता दिखाता है और झूठ वो धुआं है जो इंसान की आंखों को धुंधला देता है। अगर हम अपनी जिंदगी में सच्चाई को अपना लें तो न सिर्फ हमारी जात संवरेगी बल्कि हमारा घर, हमारा मुआशरा और हमारी आने वाली नस्लें भी बेहतर होंगी। सच्चाई एक ऐसी दौलत है जिसे ना चोरी किया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना वक्त के साथ कम किया जा सकता है।
वो रोशनी है जो इंसान को हर इम्तिहान में कामयाब करती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सच बोलें, सच लिखें, सच पर अमल करें और अपनी औलाद को भी सच्चाई का दर्स दें। यही सच्ची कहानी का बेहतरीन सबक है और यही कामयाब जिंदगी का असल राज है। अगर आप चाहें तो मैं इसी मौजू पर मजीद खूबसूरत और जज्बाती अंदाज में अल्फाज की मुकम्मल तकरीर भी लिख सकता हूँ। सच्ची कहानी का बेहतरीन सबक किसी ज़माने में एक छोटा सा गांव था जिसके लोग सादा, मेहनती और एक दूसरे पर एतमाद करने वाले थे। इस गांव में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम हसन गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था, मगर उसकी एक बहुत बड़ी खूबी थी, वो हमेशा सच बोलता था। उसकी वालिदा इसे बचपन ही से यही नसीहत करती थीं कि बेटा, झूठ वक्ती फ़ायदा दे सकता है मगर सच हमेशा इज्जत देता है। हसन की ये बात दिल में बैठ गई थी। हसन के वालिद एक दियानतदार किसान थे। उनकी आमदनी ज़्यादा ना थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी का हक नहीं मारा। वो कहते थे कि और रिस्क कम हो तो सब्र करना, मगर नाप तोल में कमी ना करना, जुबान से झूठ ना बोलना और किसी की अमानत में खियानत ना करना। हसन उन्हीं बातों के माहौल में पला बड़ा। उसके घर में दौलत नहीं थी मगर अखलाक बहुत बुलंद थे। गांव में एक बहुत बड़ा ताजिर आकर बस गया था। इसका नाम कासिम था। वो बाहर से तो नेक नर्म दिखता और मुहज़्ज़िब नजर आता था, मगर हकीकत में उसके दिल में लालच और धोखा था। वो लोगों को अपनी बातों में फंसाता, सौदे में कमी पेशी करता और जो शख्स कमज़ोर होता इसका हक आसानी से खा जाता। गांव के लोग इससे डरते भी थे और उसके कारोबार की वजह से इससे मोहताज भी थे। इसीलिए बहुत से लोग इसकी ज़्यादतियों के बावजूद खामोश रहते थे। एक दिन गांव में एक बड़ी मंडी लगी। हसन के वालिद ने इसे चंद सेर गल्ला बेचने के लिए भेजा। हसन ने सोचा कि आज वो अपनी दियानतदारी से ही पहचाना जाएगा। वो अपनी बोरियों को अच्छी तरह लेकर मंडी पहुंचा। वहां कासिम का दुकान भी था। कासिम ने हसन के गल्ले को देखा और कहा, ए लड़के, ये गल्ला तो कुछ पुराना लगता है, मैं इसका अच्छा दाम नहीं दे सकता। अगर चाहो तो आधी कीमत ले लो, वरना वापस ले जाओ। हसन ने गौर से गल्ले को देखा। इसे मालूम था कि इसका गल्ला बिल्कुल ठीक है, लेकिन कासिम इसे कम कीमत में लेना चाहता था। हसन ने आहिस्ता से जवाब दिया, अगर आपको कोई शक है तो आप अच्छी तरह देख ले, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जो चीज़ जैसी है वैसी ही बताऊंगा। अगर गल्ला अच्छा ना हो तो मैं इसे बेचूंगा ही नहीं। कासिम ने हंसी उड़ाते हुए कहा, अरे लड़के, दुनिया में इतने सीधे नहीं बुनती तेवड़ा, बहुत झूठ सब बोलते हैं। हसन ने जवाब दिया, वो सब बोलते होंगे मगर गलत बात को दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। कासिम को हसन की बातें नागवार गुजरी, लेकिन वो खामोश रहा। इसने गल्ला कम कीमत पर लेने की कोशिश की मगर हसन ने इनकार कर दिया और वापस घर लूट गया। उसने अपने वालिद को सारा वाकया बताया। वालिद ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, जो सच की राह पर चलता है इसे कभी फौरी फायदा कम मिलता है, मगर आखिर में अल्लाह इसके लिए बेहतर रास्ता खोल देता है। चंद दिन बाद गांव में एक बड़ा मसला पैदा हुआ। कासिम की गोदाम में आग लग गई। उसके कई थैले हिसाब किताब और तिजारत के कागजात जल गए। इस हादसे में इसका बहुत नुकसान हुआ। अब वो परेशान गया। इसे अपने नुकसान की तलाफी के लिए दियानतदार और काबिल एतमाद मजदूरों और खरीदारों की ज़रूरत थी, मगर जिससे इसने पहले धोखा किया था वो कोई इसके साथ खड़ा ना हुआ। लोग इससे नाराज थे, इस पर भरोसा नहीं करते थे। इस वक्त गांव के सरदार ने हसन के वालिद से कहा, हमने सुना है कि तुम्हारा बेटा सच बोलता है और अमानतदार है, हमें इस जैसे नौजवान की जरूरत है। हसन को मंडी के हिसाब किताब, अनाज की जांच और खरीद और फरोख्त के काम में मदद के लिए बुलाया गया। हसन शुरू में घबरा गया क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, मगर उसने नीयत साफ रखी और काम कबूल कर लिया। हसन ने ईमानदारी से हर चीज लिखना शुरू की। इसने गल्ले का वजन सही किया, कीमत में कोई कमी बेशी ना की और हर खरीदार के साथ इंसाफ किया। लोग हैरान थे कि एक कम उम्र लड़का इतनी सच्चाई और जिम्मेदारी से काम कैसे कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी शोहरत फैलने लगी। लोग पहले कासिम से सामान लेते थे, वो अब हसन पर एतमाद करने लगे। उनका कहना था कि ये लड़का जो कहता है वही करता है, इसके यहाँ ना धोखा है ना बनावट। दूसरी तरफ कासिम अपने नुकसान से परेशान रहता। इसने सोचा कि अगर वो भी सच बोलता तो शायद लोग इससे ना भागते। इसने कई बार अपने दिल में खुद से कहा कि मैंने लोगों को धोखा दिया, इसलिए अब कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। मगर उसके लिए अपनी गलती मानना आसान ना था। एक दिन वो हसन के पास आया और बोला, तुम इतने कम उम्र होकर भी लोग तुम पर क्यों भरोसा करते हैं? हसन ने नरमी से जवाब दिया
क्योंकि मैं झूठ का सहारा नहीं लेता। सच बोलना मुश्किल जरूर है मगर यही भरोसा पैदा करता है। कासिम ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैंने जिंदगी भर फायदा तो बहुत उठाया मगर इज्जत खो दी। अब समझ में आ रहा है कि असल सरमाया माल नहीं एतमाद होता है। हसन ने अदब से कहा, एतमाद एक बार टूट जाए तो दोबारा जोड़ने में वक्त लगता है मगर अगर इंसान दिल से तौबा करे और सच्चाई इख्तियार करे तो अल्लाह रास्ता बना देता है। कासिम को हसन की बातें दिल में लग गईं। इसने फैसला किया कि अब वो अपनी तिजारत दुरुस्त तरीके से करेगा। उसने पहले जिन लोगों का हक मारा था उनसे मुआफ़ी मांगी, नुकसान की तलाफी की और वादा किया कि आइंदा वो कभी धोखा नहीं देगा। अच्छे लोगों ने फौरन मुआफ़ कर दिया। कुछ ने वक्त लिया मगर कासिम ने हिम्मत नहीं हारी। वो दिन रात मेहनत करता रहा और अपनी साख वापस बनाने लगा। हसन की सच्चाई गांव में एक मिसाल बन गई। बच्चों को वालिदैन इसकी मिसाल देने लगे। असातिज़ा कहते, अगर तुम्हें बड़ा बनना है तो पहले सच्चा बनो। लोग समझ गए कि झूठ बज़ाहिर चालाकी है लेकिन आखिर में नुकसान देता है। सच्चाई बज़ाहिर मुश्किल है मगर अंजाम में सुकून और इज्जत देती है। कुछ अरसे बाद गांव में एक सरकारी अफसर आया। इसने गल्लुई की खरीदारी के लिए ऐसे लोगों का इंतखाब करना था जिन पर मुकम्मल एतमाद किया जा सके। जब उसने हसन का नाम सुना तो इसे बुलाया। गासना ने तमाम हिसाब किताब साफ और दुरुस्त पेश का। अफसर इसकी दियानतदारी से बहुत मुतासिर हुआ। इसने हसन को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जिससे न सिर्फ इसकी अपनी जिंदगी सांवर गई बल्कि इसके घर वालों के हालात भी बेहतर हो। गिस्न की वालिदा ने इस मौके पर कहा, देखा बेटा, सच कभी रायगा नहीं जाता। हो सकता है देर से रंग दिखाए मगर उसका फल मीठा होता है। हसन ने अदब से सर झुकाया और कहा, उम्मी, अगर आपने मुझे बचपन से सच बोलना ना सिखाया होता तो आज मैं यहाँ ना होता। इसी दौरान कासिम भी बदल चुका था। उसकी तिजारत अब पहले से बेहतर चलने लगी थी क्योंकि वो लोगों के साथ इंसाफ करने लगा। त्यास ने एक दिन हसन से कहा, तुमने मुझे सिर्फ एक बात नहीं सिखाई बल्कि जिंदगी का असल सबक दिया ही। पहली में समझता था कि चालाकी कामयाबी है मगर अब जाना कि सच्चाई ही असल कामयाबी है। हसन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, असल कामयाबी वो है जिसमें इंसान अल्लाह के सामने भी और लोगों के सामने भी सुरखरू हो। यह किस्सा सिर्फ हसन और कासिम का नहीं बल्कि हर इंसान की जिंदगी का आईना है। दुनिया में बहुत से मौके ऐसे आते हैं जब झूठ बोलकर आसानी हासिल की जा सकती है, किसी को धोखा देकर फायदा उठाया जा सकता है, ऐसा छुपाकर वक्ती आराम मिल सकता है। मगर याद रखना चाहिए कि झूठ पर बनी हुई इमारत हमेशा कमजोर होती है। एक दिन ऐसा आता है जब वो गिर जाती है और जब वो गिरती है तो सिर्फ अर्थ नहीं गिरती, इंसान का एतमाद, इज्जत और सुकून भी साथ ले डूबती है। सच्चा इंसान को मजबूत करती है। सच्चा इंसान बाज औकात फौरन कामयाब नहीं होता मगर वो दिल से मुतमईन रहता है। इसके अंदर खौफ कम होता है, इसका ज़मीर पुरसुकून रहता है और लोग इस पर भरोसा करते। आओ जय बेटा, इंसान हर वक्त पकड़े जाने के डर में जीता है। इसके मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज़ एक नई फिक्र पैदा करता है। इसे हर वक्त याद रखना पड़ता है कि इसने क्या कहा था, कहाँ कहा था और किससे कहा था। उसके मुकाबले में सच्चा इंसान साफ पानी की तरह होता है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। इस कहानी का बेहतरीन सबक यही है कि सच्चाई इंसान की सबसे बड़ी ताकत ही। दौलत जा सकती है, मनसब छन सकता है, शोहरत मिट सकती है मगर सच्चाई से बनने वाली इज्जत देर पा होती है। जो बचपन से सच बोलना सीख ले वो जिंदगी में बड़े फख्र से जीता है और जो सच्चाई को अपना शियार बना ले अल्लाह भी इसके रास्ते आसान फरमा देता है। आज के ज़माने में भी यही सबक इतना ही अहम है जितना पहले था। स्कूल में, घर में, कारोबार में, दोस्ती में और हर रिश्ते में सच्चाई बुनियाद है। अगर बुनियाद मजबूत हो तो इमारत कायम रहती है, अगर बुनियाद झूठी हो तो खूबसूरत से खूबसूरत इमारत भी खतरे में रहती है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि सच्ची कहानी का बेहतरीन सबक ये है, सच हमेशा अच्छा अंजाम लाता है और झूठ हमेशा आखिरकार नुकसान देता है। जो इंसान सच्चाई को अपना ले वो दुनिया में भी इज्जत पाता है और आखिरत में भी कामयाब होता है। सच्ची कहानी का बेहतरीन सबक, सच्चाई इंसान की शख्सियत का सबसे खूबसूरत जेवर है। झूठ वक्ती फायदा तो दे सकता है मगर आखिरकार इंसान को रुस्वा करता है, जबकि सच्चाई कभी ना कभी जरूर इज्जत, एतमाद और कामयाबी का सबब बुनती है।
है जिंदगी में बहुत सी कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सुनने वाले के दिल में उतर जाती हैं और इसे अच्छाई की तरफ माइल करती हैं। सच्ची कहानी का सबसे बड़ा हसन यही होता है कि वो सिर्फ तफरीह नहीं देती बल्कि जिंदगी बदलने वाला सबक भी दे जाती है। आज की इस तहरीर में हम एक ऐसी सच्ची कहानी और उसके बेहतरीन सबक पर गुफ्तगू करेंगे जिससे बच्चों, नौजवानों और बड़ों सब के लिए रहनुमाई मिलती है। कहते हैं कि एक छोटे से गांव में नाम का एक गरीब मगर ईमानदार लड़का रहता था। इसका खानदान बहुत ज्यादा अमीर न था। इसके वालिद एक मामूली मजदूर थे और माँ घर में सिलाई कढ़ाई करके घर का खर्च चलाने में मदद देती थी। एक मेहनती, खामोश मिजाज और सादा दिल बच्चा थे और रोजाना सुबह सवेरे उठता, मदरसे और स्कूल जाता और वापस आकर अपने वालिद के काम में हाथ बटाता। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो कभी झूठ नहीं बोलता था। अहमद के गांव में एक दुकानदार रहता था जिसका नाम चचा करीम था। वो बहुत तजर्बा का आदमी था और गांव के लोगों से हमेशा खुश इखलाकी से पेश आता था। हम अक्सर उसकी दुकान से घर का सामान लाया करता थे। एक दिन चचा करीम ने अहमद से कहा, बेटा तुम हमेशा सच बोलते हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इतने गरीब घर से होने के बावजूद हमेशा खुश कैसे रहते हो? अहमद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, चचा जान, खुशी पैसों से दिल के सुकून से मिलती है और दिल का सुकून सच्चाई और मेहनत से मिलता है। ये जवाब चचा करीम के दिल को बहुत लगा। इसने अहमद की बात को एक आम बच्चे की बात समझकर नजरअंदाज नहीं किया बल्कि इसके किरदार को गौर से देखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब वाकया पेश आया। चचा करीम की दुकान से चंद कीमती अशिया गायब हो गईं। दुकान के अंदर से कोई चीज चोरी नहीं हुई थी बल्कि सामान की गिनती में कमी आ गई थी। चचा करीम ने सबसे पहले अपने नौकर से पूछा, फिर एक दो ग्राहकों से, मगर किसी ने भी चोरी का इकरार नहीं किया। उसने सोचा कि शायद गांव का कोई बच्चा गलती से सामान ले गया हो। इसी दौरान अहमद दुकान पर आया। चचा करीम ने अहमद से पूछा, बेटा क्या तुमने दुकान से कोई चीज ली थी? अहमद ने फौरन और सच्चाई से जवाब दिया, चचा जान, मैंने आज सिर्फ 2 साबुन और एक डिबिया माचिस ली थी, वो भी उम्मी के कहने पर, और पैसे मैंने पूरी दिए थे। मैंने आपके सामान में से कुछ नहीं लिया। चचा करीम ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूँ कि कहीं तुमने किसी को कुछ करते देखा तो नहीं? अहमद ने कुछ सोच कर कहा, चचा जान, कल शाम को जब मैं दुकान से घर जा रहा था, मैंने दुकान के पिछले हिस्से में एक अजनबी आदमी को खड़े देखा था। वो बहुत जल्दी में था, मुझे मालूम नहीं कि वो कौन था, मगर उसके हाथ में एक बड़ा सा थैला था। चचा करीम ने फौरन इस बात पर गौर किया। उसने मोहल्ले के कुछ लोगों से पूछ-गुछ की तो पता चला कि एक मुसाफिर इस वक्त दुकान के पीछे से गुजरा था और गलती से एक थैला उठा ले गया था जिसमें वही सामान थे। असल में दुकानदार ने सामान एक तरफ रखा था और एक मुसाफिर ने इसे अपना सामान समझ लिया था। जब हकीकत सामने आई तो चचा करीम को बहुत खुशी हुई, मगर सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि अहमद ने न कोई झूठ बोला, न किसी बेगुनाह पर इल्जाम रखा। इसने जो कुछ देखा था वही बताया। अगर वो चाहता तो खामोश रहता, कोई फर्जी बात बना देता, मगर उसने सिर्फ सच कहा। चचा करीम ने अहमद को इनाम देना चाहा, मगर अहमद ने देने से इनकार कर दिया और कहा, चचा जान, मैंने कोई खास काम नहीं किया, मैंने सिर्फ सच बोला है। ये सुनकर चचा करीम की आंखों में आंसू आ गए। इसने अहमद के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा यही तो असल दौलत है। जो बच्चा सच बोलना सीख ले वो कभी जिंदगी में बहुत पीछे नहीं रहता। वक्त गुजरता गया। अहमद पढ़ाई में भी अच्छा था और किरदार में भी इसने अपनी मेहनत जारी रखी। कई साल बाद वही अहमद अपने जिला का एक कामयाब उस्ताद बन गया। इसकी सच्चाई और दयानत की वजह से लोग इसका बहुत एहतराम करते थे। जब भी किसी बच्चे से गलती होती वो डांटने के बजाय न से समझाता। वो अक्सर कहा करता था, मेरी कामयाबी का राज न सिर्फ मेहनत है बल्कि सच्चाई है। सच्चा इंसान कभी दिल का बोझ नहीं उठाता। झूठ बोलने वाला हर वक्त डरता रहता है, जबकि सच्चा इंसान सुकून से जीता है। इस कहानी से हमें कई सबक मिलते हैं। पहला सबक ये है कि सच्चाई इंसान को एतमाद देती है। जब इंसान सच बोलता है तो इसे किसी झूठ को छुपाने के लिए इजाफी बातें नहीं बनानी पड़ती। वो साफ दिल और पुरसुकून रहता है। दूसरा सबक ये है कि सच्चाई से लोग इज्जत करते हैं। मुमकिन है शुरू में सच बोलने वाला मुश्किल में पड़ जाए, मगर आखिरकार लोग इसी को पसंद करते हैं जो ईमानदार हो। दूसरा सबक ये है कि झूठ का अंजाम बुरा होता है। झूठ की बुनियाद कमजोर होती है। एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं और फिर इंसान सच्चाई से मजीद दूर हो जाता है। चौथे सबक ये है कि वालिदैन और असातिज़ा को बच्चों में
सच्चाई की आदत डालनी चाहिए क्योंकि बचपन की आदतें सारी उम्र साथ चलती हैं। आज के दौर में सच बोलना पहले से ज्यादा जरूरी है। सोशल मीडिया, दोस्तों की महफिल, इम्तिहानात, कारोबार और रोजमर्रा जिंदगी में इंसान को बार बार ऐसे मौके मिलते हैं जहां वो झूठ बोलकर वक्ती फायदा उठा सकता है, मगर एक सच्चा इंसान समझता है कि वक्ती फायदा वक्ती ही होता है। सच्चा के असरात देरपा होते हैं। आज अगर कोई तालिब इल्म नफी के बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा करे, आज अगर कोई ताजिर नाप तोल में दियानत रखे, आज अगर कोई दोस्त अपने दोस्त से सच बोले, तो यही आदतें इसकी जिंदगी को कामयाबी से भर देती हैं। सच्ची कहानियों का एक और बड़ा फायदा यह है कि वो दिल पर ज्यादा असर करती हैं। नजरियाती बातें कभी कभी जहन से गुजर जाती हैं, मगर जब कोई वाकया या कहानी सुनाई जाए तो इंसान इसे देर तक याद रखता है। इसलिए बुजुर्ग हमेशा बच्चों को किस्से, कहानियां और वाकयात के जरिए तरबियत देते थे। एक अच्छी सच्ची कहानी न सिर्फ दिल को नर्म करती है बल्कि किरदार को संवारती है। यही वजह है कि तारीख में नेक लोगों, ईमानदार ताजिरों, सच्चे दोस्तों और मेहनती तालिब इल्म के वाकयात हमेशा याद रखे जाते। आओ, सच्चा सिर्फ जुबान तक महदूद नहीं होती बल्कि नियत, अमल और रवैये में भी नजर आती है। सच्चा इंसान वादा निभाता है, अमानत में खियानत नहीं करता, किसी के हक पर डाका नहीं डालता और अपनी गलती मानने से नहीं डरता। जो इंसान अपनी गलती तस्लीम कर लेता है वो दरअसल अपनी इस्लाह की तरफ पहला कदम उठाता है। इसके बरक्स जो शख्स हर हाल में खुद को बचाने के लिए झूठ बोलता है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी साख देता है। बच्चों के लिए खास तौर पर यह सबक बहुत अहम है कि अगर वो किसी गलती के बाद सच बोल दें तो उनकी इज्जत कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। वालिदैन को भी चाहिए कि वो सच बोलने वाले बच्चे को फौरन सजा देने के बजाय इसकी बात सुने और नरमी से समझाएं ताकि बच्चा झूठ की तरफ ना जाए। अगर घर में सच बोलने की कदर होगी तो बच्चे भी सच्चाई को अपनी आदत बना लेंगे। इसी तरह स्कूलों में भी उस्ताद को चाहिए कि वो दियानत, सच्चाई और अमानतदारी को निसाब का अमली हिस्सा बनाएं। सच्चाई का एक खूबसूरत पहलू ये भी है कि ये इंसान को अल्लाह के करीब करती है। सच्चा इंसान नेकी की तरफ माइल होता है, दिल में नूर महसूस करता है और उसकी दुआओं में तासीर पैदा होती है। झूठ और फरेब दिल को तारीक कर देते हैं, जबकि सच्चाई दिल को साफ और रोशन बनाती है। जो शख्स अपने रब के सामने भी सच्चा होता है वो बंदों के सामने भी सच्चा रहता है। अगर हम अपने मुआशरे को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें सच्चाई को आम करना होगा। हर घर में, हर मदरसे में, हर स्कूल में, हर दुकान पर और हर दफ्तर में सच्चाई को अहमियत देनी होगी। जब एक शख्स सच्चा बनता है तो इसका असर उसके घर पर पड़ता है, फिर उसके मोहल्ले पर, फिर पूरे मुआशरे पर। एक सच्चा मुआशरा ही पुरअमन, मजबूत और तरक्की याफ्ता मुआशरा होता है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि सच्ची कहानी का बेहतरीन सबक यह है कि इंसान हमेशा सच बोले, सच पर कायम रहे और सच को अपनी जिंदगी का उसूल बना ले। सच्चाई में अगरचे वक्ती मुश्किल नजर आती है लेकिन इसका अंजाम हमेशा अच्छा होता है। सच बोलने वाला कभी अंदर से कमजोर नहीं होता क्योंकि इसके दिल में खौफ नहीं होता। वो सर उठाकर जीता है, इज्जत से मरता है और लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। आइए हम सब अहद करें कि हम झूठ से बचेंगे, सच्चाई को अपनाएंगे और अपने बच्चों को भी यही सबक देंगे कि सच्चा इंसान ही असल में कामयाब इंसान है। कहानियों का यही बेहतरीन सबक है और यही हमारी दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी का रास्ता है। सच्ची कहानी का बेहतरीन सबक इंसान की जिंदगी में कहानियां सिर्फ दिल बहलाने का जरिया नहीं होती बल्कि ये सोचने, समझने और अपनी इस्लाह करने का एक खूबसूरत जरिया भी होती है। अच्छी और सच्ची कहानी इंसान के दिल पर ऐसा असर छोड़ती है जो सिर्फ चंद लम्हों के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए रहनुमाई बन जाती है। सच्ची कहानी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें कोई झूठा रंग, बनावटी जज्बात, मसनूई तारीफ नहीं होती बल्कि हकीकत की रोशनी होती। हकीकत इंसान को वो सबक देती है जो अक्सर लंबी नसीहतें भी नहीं दे सकती। इसीलिए कहा जाता है कि सच्ची कहानी इंसान के दिल में उतरकर उसकी सोच बदल देती है। सच्चाई एक ऐसा अजीम वस्फ है जो इंसान की शख्सियत को निखारता है, इसके किरदार को मजबूत करता है और इसे एतमाद, इज्जत और कामयाबी की तरफ ले जाता है। झूठ वक्ती फायदा तो दे सकता है लेकिन इसका अंजाम हमेशा नुकसान, शर्मिंदगी और जिल्लत की सूरत में निकलता है। इसके बरक्स सच्चाई कभी कभी मुश्किल जरूर लगती है मगर उसका नतीजा हमेशा अच्छा होता है। यही वजह है कि सच्ची कहानी हमें जिंदगी के अहम तरीन सबक सिखाती है, खुसूसन ये कि इंसान को हर हाल में सच्चा, ईमानदार और मजबूत किरदार का मालिक होना
چاہیے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب مگر بہت ایماندار لڑکا رہتا تھا۔ اس کا نام حسن تھا۔ حسن کے والد ایک مزدور تھے اور ماں گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی۔ تیئر میں زیادہ آسائشیں نہ تھیں لیکن ایک چیز بہت مضبوط تھی، سچائی۔ حسن کے والد ہمیشہ اسے نصیحت کرتے تھے کہ بیٹا، دولت نہ ہو تو صبر کر لینا مگر زبان پر جھوٹ نہ آنے دینا۔ جھوٹ انسان کو عارضی فائدہ دے کر ہمیشہ کے لیے نقصان پہنچاتا ہے۔ حسن یہ بات دل میں بسا لیتا تھا۔ وہ بچپن سے ہی سچ بولنے کی عادت رکھتا تھا، چاہے اس کی وجہ سے اسے ڈانٹ ہی کیوں نہ پڑے۔ ایک دن گاؤں کے اسکول میں امتحان تھا۔ حسن بہت محنتی طالب علم تھا مگر ریاضی کے ایک سوال میں اسے مشکل پیش آئی۔ اس کے برابر بیٹھے ایک لڑکے نے چپکے سے اپنا جواب اس کی کاپی میں لکھنے کا اشارہ کیا۔ حسن جانتا تھا کہ اگر وہ نقل کرے گا تو شاید اچھے نمبر دے دے، لیکن دل میں گواہی دی کہ یہ غلط ہے۔ اس نے استاد کو صاف صاف بتا دیا کہ وہ سوال اس سے نہیں ہو سکا۔ استاد نے اس کی ایمانداری کو سراہا اگرچہ اسے اس سوال کے نمبر نہ ملے۔ کچھ دن بعد جب نتائج آئے تو حسن کے نمبر اتنے زیادہ نہیں تھے مگر استاد نے پوری کلاس کے سامنے کہا کہ حسن نے سچ بولا، اور سچ بولنے والا طالب علم جھوٹ بولنے والے نمبر لینے والے سے زیادہ قابل احترام ہوتا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب حسن نے محسوس کیا کہ سچائی انسان کی عزت بڑھاتی ہے، چاہے فوری فائدہ نہ بھی دے۔ وقت گزرتا گیا، حسن بڑا ہو گیا۔ اس نے گاؤں کے بازار میں ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ دکان پر روزانہ بہت سے لوگ آتے۔ حسن کی خاص بات یہ تھی کہ وہ کبھی ناپ تول میں کمی نہیں کرتا تھا۔ اگر گاہک کو غلطی سے زیادہ چیز دے دی تو واپس نہیں مانگتا تھا، اور اگر چیز میں خرابی بھی ہوتی تو صاف بتا دیتا تھا۔ شروع میں کچھ لوگوں نے اسے کہا کہ بازار میں سب لوگ ایسا نہیں کرتے، تم بھی ہوشیار بنو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ مگر حسن کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ سچائی سے ہٹنا اپنی عزت بیچنے کے برابر ہے۔ اس نے کبھی اپنی زبان، اپنے وزن، اپنے وعدے اور اپنے حساب میں جھوٹ شامل نہ ہونے۔ امیر تاجر گاؤں میں آیا۔ اس نے حسن کی دکان سے سامان خریدا۔ اس نے یہ پورا حساب صاف بتایا اور بالکل درست قیمت بھی۔ تاجر نے غور کیا کہ یہ نوجوان عام دکانداروں جیسا نہیں، اس کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ اطمینان ہے۔ اس کی باتوں میں لالچ نہیں بلکہ صفائی ہے۔ Create a 10 minutes video for YouTube about Da'aki Taqat kids moral story. پیشکش کی۔ اس نے کہا مجھے مال کی کمی نہیں، مجھے ایماندار ساتھی کی ضرورت ہے۔ دولت تو بہتوں کے پاس ہوتی ہے مگر سچائی کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ حسن کی ایمانداری اس کی قسمت بن گئی۔ اگر وہ شروع سے جھوٹ اور دھوکے کا راستہ اختیار کرتا تو شاید کبھی یہ موقع نہ ملتا۔ یہاں سے حسن کی زندگی کا نیا باب شروع۔ Create a 10 minutes video for YouTube about Da'aki Taqat kids moral story. جس نے اسے اس مقام تک پہنچایا تھا۔ اس نے شہر میں بھی اپنی سچائی کو نہیں چھوڑا۔ وہ نہ رشوت YouTube دیتا کے تھا، لیے نہ دھوکہ 10 کرتا منٹ تھا، کا نہ ویڈیو کسی بنا کمزور کا حق مارتا جس کا تھا۔ موضوع کچھ لوگ مشکلات کا اسے مقابلہ، بے وقوف بچوں مگر کی وقت اخلاقی نے ثابت کہانی کیا ہو۔ کہ سادہ وہ نہیں جو سچ بولے بلکہ سادہ وہ ہے جو جھوٹ کی چال میں پھنس جائے۔ اس نے کے کاروبار میں برکت بڑھتی گئی، لوگ اس پر اعتماد کرنے لگے۔ دکان اور پھر کاروبار کا نام خوش اخلاقی، دیانت اور سچائی کی علامت بن گیا۔ ایک بار ایک سخت آزمائش بھی آئی۔ شہر میں اس کے کاروبار کے ایک حصے میں نقصان ہو گیا۔ اگر حسن چاہتا تو جھوٹ بول کر، غلط حساب دکھا کر، کسی اور پر الزام ڈال کر خود کو بچا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ اس نے اپنے شرکن کار ملازمین اور متعلقہ لوگوں کے سامنے پوری سچائی بیان کر داستان کہا نقصان ہوا ہے مگر اسے چھپانا نقصان کو دگنا کرنا ہے۔ میں سچ بولوں گا چاہے کچھ عرصے کے لیے مجھے تکلیف ہی کیوں نہ اٹھائے۔ اس کے اس اعتراف نے سب کو حیران کر دیا۔ جن لوگوں نے پہلے اسے کمزور سمجھا تھا اب وہی اس کی عزت کرنے لگے۔ اس نے سکھایا کہ سچائی صرف زبانی دعویٰ نہیں بلکہ مشکل وقت میں بھی اس پر قائم رہنے کا نام ہے۔ سچی کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ سچائی انسان کو اندر سے مضبوط بناتی ہے۔ جھوٹ بولنے والا آدمی ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، ایسی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کیا کہا تھا، کس سے کیا وعدہ کیا تھا اور کس کے سامنے کون سی بات چھپائی تھی۔ اس کی زندگی ایک الجھاؤ بن جاتی ہے۔ مگر سچا انسان کو سکون ہوتا ہے، اس کے دل میں خوف کم اور اطمینان زیادہ ہوتا ہے۔ وہ رات کو سکون سے سوتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کسی کا حق نہیں مارا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا اور کسی کے سامنے غلط بات نہیں کی۔
सच्चाई सिर्फ कारोबार और पढ़ाई में ज़रूरी नहीं बल्कि घर, दोस्तों, रिश्तों और हर रिश्ते में लाजमी है। अगर बच्चे अपने वालिदैन से सच बोले, वालिदैन अपने बच्चों से सच बोलें, दोस्त एक दूसरे से सच बोलें, मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ सच्चाई अपनाएं तो घरों में अमन, मोहब्बत और एतमाद पैदा होता है। झूठ रिश्तों में दरार डालता है। अक्सर छोटे छोटे झूठ बड़े बड़े झगड़ों का सबब बन जाते हैं। एक झूठी बात कई सच्ची बातों को भी मशकूक बना देती है। इसलिए सच्चाई रिश्तों का हसन है और झूठ उनका जहर। हमारी तारीख में भी सच्चाई की मिसालें बहुत आओ। हमारी दीन में सच बोलने वालों की बहुत इज्जत की गई है। सच बोलने वाले को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है और सच्चाई इंसान को नेकी को जन्नत और इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाती है। अगर एक मुआशरा सच्चाई पर कायम हो जाए तो वहाँ इंसाफ मजबूत होता है, लोगों में एतमाद पैदा होता है और तरक्की के दरवाजे खुलते हैं। इसके बरक्स धोखा और फरेब एक कौम को कमजोर कर देते हैं। जब लोग एक दूसरे पर यकीन न करें तो तिजारत भी मुतासिर होती है, तालीम भी कमजोर होती है और मुआशरती निज़ाम भी बखर जाता है। हसन की कहानी हमें ये भी बताती है कि सच्चाई का रास्ता कभी फौरी तौर पर आसान नहीं होता, मगर उसका अंजाम हमेशा रोशन होता ही हो सकता है। इब्तिदा में सच बोलने वाला शख्स नुकसान उठाए, तनकीद सहे या इसकी बात को अहमियत ना दी जाए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ सबको इसकी सच्चाई का फायदा नजर आता है। सच्चाई एक बीज की तरह पहले जमीन में छप जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता दरख्त बनकर साया फल देता है। झूठ एक खूबसूरत कागजी फूल की तरह है जो दूर से अच्छा लगता है मगर इसमें खुशबू नहीं होती। आज के ज़माने में जब सोशल मीडिया, दिखावा और मसनूई शोहरत का दौर है, सच्चाई की अहमियत और भी बढ़ गई है। लोग तस्वीर में कुछ और होते हैं, हकीकत में कुछ और, अल्फाज में मोहब्बत मगर दिल में नफरत, बातों में खैरखाही मगर अमल में नुकसान। ऐसे माहौल में सच्चाई एक नायाब खजाना बन जाती है। जो इंसान इस खजाने का मालिक बन जाए वो बहुत खुश नसीब होता है। सच्चे इंसान की पहचान ये है कि वो कम बोले मगर दुरुस्त बोले, वदा करे तो निभाए और अगर गलती हो जाए तो इसे कबूल कर ले। कहानी का एक और सबक ये है कि गलती होने पर उसका एतराफ़ कर लेना भी बड़ी हिम्मत की बात है। बहुत से लोग अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं, हालांकि अगर वो सच बोल दें तो शायद मामला आसान हो जाए। सच्चा इंसान अपनी गलती मानने से नहीं घबराता क्योंकि इसे मालूम होता है कि गलती छुपाना गलती से भी बड़ा जुर्म बन सकता है। जो इंसान सच्चाई को अपना लेता है वो दरअसल अपनी इस्लाह का दरवाज़ा खोल लेता है। हसन की जिंदगी के आखिरी बरसों में गांव के लोग अक्सर इसके पास आते और अपने मसाइल बताते। वो उन्हें नसीहत करता कि जिंदगी में सब कुछ एक दिन खत्म हो सकता है मगर अच्छी शोहरत, नेकनामी और सच्चाई हमेशा याद रहती है। माल चला जाए तो फिर भी कमाई जा सकती है मगर एतमाद टूट जाए तो दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसकी बातें लोग गौर से सुनते क्योंकि इसकी जिंदगी खुद इस बात की गवाही थी कि सच्चाई इंसान को इज्जत, बरकत और सुकून देती है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि सच्ची कहानी का बेहतरीन सबक यह है कि इंसान को हर हाल में सच्चाई, दियानत और ईमानदारी इख्तियार करनी चाहिए। सच बोलना कभी कभी मुश्किल जरूर होता है मगर यही मुश्किल इंसान को बड़ा बनाती है। झूठ वक्ती कामयाबी दे सकता है मगर सच हमेशा देरपा कामयाबी देता है। सच वो चिराग है जो अंधेरों में रास्ता दिखाता है और झूठ वो धुआं है जो इंसान की आंखों को धुंधला देता है। अगर हम अपनी जिंदगी में सच्चाई को अपना लें तो न सिर्फ हमारी जात संवरेगी बल्कि हमारा घर, हमारा मुआशरा और हमारी आने वाली नस्लें भी बेहतर होंगी। सच्चाई एक ऐसी दौलत है जिसे ना चोरी किया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना वक्त के साथ कम किया जा सकता है। ये दिल की वो रोशनी है जो इंसान को हर इम्तिहान में कामयाब करती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सच बोलें, सच लिखें, सच पर अमल करें और अपनी औलाद को भी सच्चाई का दर्स दें। यही सच्ची कहानी का बेहतरीन सबक है और यही कामयाब जिंदगी का असल राज है। अगर आप चाहें तो मैं इसी मौजू पर मजीद खूबसूरत और जज्बाती अंदाज में अल्फाज की मुकम्मल तकरीर भी लिख सकता हूँ।